Hello students. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. In the last class, we discussed about the difference in the types of cells like eukaryotic cell, prokaryotic cells, and animal cell and plant cell. And even we saw the differences between how the cells are particularly different from each other, like unicellular and multicellular organisms, and the difference between a unicellular and a multicell. Okay. So these were the differences, and they're very important from the exam point of view also. And I hope you have all have cleared all the doubts and everything. Okay, but then too, if you are having any kind of doubt, you can feel free to ask me anytime. Okay. Now today we are going to continue the topic where we are going to study about the movement of material inside and outside the cell. Now, if I talk about movement of material, there are two kinds of methods through which the movement takes place, active and passive. Let's not think about active passive, let's talk about very simple manner, diffusion and osmosis. Diffusion. Diffusion is basically a very simple method that doesn't require a lot of energy, and osmosis that requires energy. Okay, but what is diffusion? What is osmosis? We need to understand. So diffusion is basically, in a simple word, if I tell you that diffusion is something, the movement of gaseous material from one medium to another medium. One medium will be higher concentration, other will be lower concentration. So the movement, this kind of movement is known as diffusion, the gaseous movement inside and outside the cell. Similarly, the movement of water molecules is known as the the movement of osmosis is known as basically the movement of liquid material. Okay, let's see the definitions and all, okay, in the form of presentation, and even I will show you an animation presentation based on that. Okay, so let's see the presentation. So today we are going to see diffusion and osmosis. Basically, we will be trying to understand that what is the phenomena diffusion and osmosis. You might be knowing or you might have studied somewhere. Actually, inside or outside the cell, the movement of different kinds of material, okay, takes place through these two kinds of methods. As you see on the screen, we are having diffusion. Gases exchange takes place from a region of higher concentration to a region of lower concentration inside and outside the cell by this method. Okay, this method helps basically for the movement of material in and out of the cell. Okay, and the movement will be always from the higher concentration to the lower concentration. Similarly, if there is liquid, if the material is liquid, so in that case we call it, the method is known as osmosis. Okay, if the material which is to be transported is basically liquid, so in that case the method to transport is known as osmosis. As you can see the definition mentioned below, the movement of water from a region of higher water concentration through a semi permeable membrane to a region of low concentration. ओके जब भी एक मटेरियल लिक्विड मटेरियल एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करेगा, सेमी परमिएबल मतलब ना सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी हो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हमारा मेम्ब्रेन है, ओके, जो मेम्ब्रेन है हमारा मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, सो ऑस्मोसिस कहा जाएगा. Okay, so let's try to understand by animated presentation of diffusion and osmosis. How does the movement takes place? Okay, fine. Okay, first we'll see diffusion. As you see here that definition is also mentioned, but as you see the gaseous particles are moving from a higher concentration to the lower the movement, you can see the movement, right? They're moving from right to left. Okay, this movement is basically known as diffusion when it is gas. When it is liquid, suppose it is liquid, okay, and it's a semi permeable membrane. Semi permeable मतलब आपका plasma membrane. Okay,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू क्या होगा, जब मटेरियल मूव करेगा इसके थ्रू, तो सारे मटेरियल्स को मूव करने की परमिशन नहीं होगी, कुछ मटेरियल जा सकते हैं बिकॉज इट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, देखो उस तरफ कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। क्यों, मूवमेंट क्या हो रहा है, इधर से हाई था पहले और उधर जाने लगा, फिर ये इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो होता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का ये डेफिनेशन, ये इस तरह से प्रेजेंटेशन। So let's see the difference between the osmosis and diffusion. If it is asked the difference between osmosis and diffusion, on your screen you can see the difference which I have prepared between osmosis and diffusion in a very simple way. It is not asked in a very huge marks category. It is asked in for 1 mark or 2 mark maximum. So you can see diffusion, it can occur in any medium, any kind of medium it can occur, okay, but it occurs only in a liquid medium. Osmosis occurs only in a liquid medium, and diffusion, it occurs in any medium. It does not require a semi-permeable membrane. It does not require any kind of membrane, okay, but it requires a semi-permeable membrane. Okay, so these are the two things, okay, which you need to understand in the difference between diffusion and osmosis, okay, and the definitions of in the definition of diffusion and osmosis. I hope you understood this thing, that what is. Now, as you have seen the presentation, the difference between diffusion and osmosis, I hope your concept is clear. I took the topic in bit detail. It is not asked in that detail, but then too I took the topic in bit detail so that you understand completely that what is diffusion, what is osmosis. Please prepare the notes according to the lecture I am taking. Okay, I want this topic to be in the notes, the difference, the definition. Now, on the basis of osmosis, now let's see the phenomena in our body, in our cell, any kind of cell, okay, which is which is based on osmosis. Okay, osmosis. How does osmosis takes place in these three conditions we are going to study now? The conditions are of a solution that is hypertonic, hypotonic, and isotonic. Okay, let's try to see it. What is hypotonic solution? What is isotonic solution? And hypotonic. This is a very simple example. अब मान के चलो कि ये दो बॉडीज हैं, वन ऑफ माई palm and another palm. Always this palm will not be having the higher concentration. Sometimes here also it can be the higher concentration. Suppose this is a cell, this is a cell, and what will happen if this is a cell? Outside the cell the concentration can be high. Sometimes inside the cell the concentration can be high. So movement may vary. So how the movement varies and what kind of these movements are known as, what kind of the solution are known as, we'll see in this presentation. So let's see the presentation based on hypertonic, isotonic, and hypotonic. Okay, fine. Diffusion and osmosis. Now on the basis of this, I will be explaining you the properties, the phenomena of osmosis. Those are known as uh, hypotonic solution, isotonic solution, and hypertonic solution. Okay, in a very brief manner, okay, in a very brief manner, if I explain you, okay, that what is isotonic and what is hypertonic, what is isotonic, there are three conditions: hypotonic, isotonic, and hypertonic. So let's try to understand this with the help of a presentation so that you can understand, and then we will be seeing the definition which I have mentioned here. Okay, so let's see the presentation. As you can see on the screen, there is a region of low concentration and a region of high concentration. So you all know right now that from where this is a O2 and CO2, means that is gases, the diffusion is taking place. So you can see the movement is taking from higher concentration to lower concentration. This is known as diffusion. We already discussed this thing. And through which this is a plasma membrane, you can see प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड मूव कर रहा है, H2O है, मीन्स वाटर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूव करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने उसको क्या बोला था, ऑस्मोसिस. ओके, सो हम ऑस्मोसिस का फिनोमेना देखते हैं. पहला फिनोमेना, ये सॉल्ट सोल्यूशन है पूरा पानी के अंदर और हमने एक सेल डाल दिया अंदर. ओके, सेल को उस पानी के अंदर हमने डाल दिया जिसमें एक सॉल्ट सोल्यूशन है. अब ये सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर हम जब उसको डालते हैं तो देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं.
ओके क्यों? बाहर कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है। ओके तो सेल क्या हुआ, देखो एक्सपैंड कर गया सेल, आपने देखा सेल कैसा हुआ, एक्सपैंड किया यहाँ पे सेल। इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। विल कॉल दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन एज हाइपोटोनिक। ओके सो व्हाट इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन? Okay, what is a hypotonic solution? The solution in which the concentration of the water molecules are higher outside the cell, so movement will be taking outside to inside. Okay, then अब बाहर अंदर, दोनों अंदर और बाहर, अंदर बाहर भी और अंदर भी concentration सेम हो। ओके तो इन दैट केस इफ द concentration इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ओके सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। तो मूवमेंट होगा ही नहीं, देयर विल बी नो मूवमेंट। ओके तो कॉन्सेंट्रेशन इज लो, सेल के अंदर, बाहर लो है, अंदर ज़्यादा है, तो सेल क्या होगा? श्रिंक होगा। क्यों? मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये तीन तरह के हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर? फिर से देखते हैं एक बार। सॉल्ट सोल्यूशन है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, इसको इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो मूवमेंट कहाँ होगा? बाहर से अंदर की तरफ। ओके हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज आउटसाइड, तो सेल क्या होगा? स्वेल कर जाएगा। क्यों? पानी बाहर से अंदर आया। तो इस तरह के सोल्यूशन, इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों सेम है, ओके तो मूवमेंट होगा ही नहीं, बिकॉज हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन बेसिकली एज isotonic solution and there will be no movement. Okay, this kind of solution will be known as isotonic. Okay, then after that सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो सेल क्या हुआ? श्रिंक कर गया। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हमारा जो सोल्यूशन है उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके व्हेन द कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज हाई एज कंपेयर टू आउटसाइड। क्लियर? अब हम सेल के कुछ पार्ट्स के बारे में। Now, you might have seen the hypertonic, isotonic and hypertonic solution and आपको समझ में आ गया होगा कि hypertonic क्या होता है. Okay? Now, as you have seen the hypertonic, isotonic and hypertonic solutions, now the next topic which we are going to study about the cell organelles, the parts of cells. Basically, starting from, we have already discussed about the cell membrane, the nucleus and all, but then too from the beginning, let's see that what are the cell membrane, how does it function, what is nucleus, what is its functions, and even the other parts of the cell. Okay, those are known as the cell organelles, which together combine to perform some function. Okay, let's see the cell organelles. अब हम सेल के कुछ पार्ट्स के बारे में समझते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। आप नीचे देख सकते हैं लिखा है न्यूक्लियस इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? इसको न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। आपने देखा डायग्राम में कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है। ओके इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर के सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इवन द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या? एक सेल के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इट कंट्रोल्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डीएनए है। डीएनए किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है। और उसके अंदर डीएनए के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ओके सो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ओके एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्शन। अब न्यूक्लियस जब से सेल बढ़ता जाता है, 1 से 2 होगा तो देखो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। ठीक है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता जाता है। जैसे हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं तो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड होके बन जाएंगे। देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक भरा हुआ लिक्विड होता है, जेली टाइप सब्सटेंस होता है। ओके उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इवन मिनरल्स वगैरह भी इसके अंदर स्टोर होते हैं। ओके इट इज़ अ थिक, आप नीचे देख सकते हो, इट इज़ अ क्लियर थिक जेली लाइक मटीरियल। ओके इट इज़ अ क्लियर थिक जेली लाइक मटीरियल। ओके ये इवन सेल को एक्सटर्नल शॉक से भी बचाता है। जब इस पर क्या होगा, कोई बाहर से दबाव आएगा तो ये जेली क्या करता है? उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके सेल को बचा लेता है, अदरवाइज सेल क्या हो सकता है? बर्स्ट हो सकता है। ठीक है तो ये हमारा फीचर है ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके
अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये कुछ ऑर्गेनल्स हमारे पास हैं, लिस्ट आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। उन ऑर्गेनल्स को हम समझते हैं। तो उसमें से हमने पहले पिक किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको स्पॉट करके भी दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ओके, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया। फिर हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, देखो कहाँ कहाँ है। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर जिसको कहते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, आर ई आर जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो तरह के होते हैं, आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक, एंड ऊपर जो दिख रहा है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के रेटिकुलम्स होते हैं। अब आर ई आर का फंक्शन क्या होता है? ये सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है, ओके। इट प्रोवाइड्स द पाथ फॉर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का पाथ देता है। और एस ई आर क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। एस ई आर प्रोटीन बनाता है और आर ई आर प्रोटीन ट्रांसफर करने का पाथ बनाता है। याद रखना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ई आर? ई आर में दो तरह के ई आर्स होते हैं, आर ई आर एंड एस ई आर, ठीक है। दो तरह के ई आर कौन से होंगे? आर ई आर एंड एस ई आर। एस ई आर का फंक्शन क्या होता है? इट सिंथेसाइजेस द प्रोटीन इनसाइड द सेल, एंड आर ई आर इट प्रोवाइड्स द पाथ और provides the network for the transportation of protein inside the cell. क्लियर? आर ई आर समझ में आया? देन उसके बाद आता है राइबोसोम्स। आप राइबोसोम्स देख सकते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स बेसिकली आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स छोटे छोटे स्फीयरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। दे सिंथेसाइज, जो आर ई आर के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसको बस कहते हैं, बस ऑफ द सेल। बस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट द मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। गोल्गी का फंक्शन, ओके। और इनका नाम किसके पीछे पड़ा? कैमिलियो गोल्गी, ओके। तो गोल्गी का फंक्शन क्या है? जो मटेरियल प्रोटीन बना सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ओके। तो ये फंक्शन हुआ किसका? गोल्गी एपरेटस का। फाइन, अंडरस्टूड। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से है। ये आपका क्या करता है, इसलिए हम इसको एक तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हम कहते हैं इट इज़ नोन एज द बस ऑफ द सेल, बिकॉज इट हेल्प्स टू लेट इन एंड आउट द मटीरियल इनसाइड द सेल। आप देख सकते हो नीचे स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। आप नीचे डेफिनेशन देख सकते हो, गोल्गी एपरेटस स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अक्रॉस जो है मटीरियल ट्रांसपोर्ट करता है, ओके, क्लियर। तो इसको हम बस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे डेफिनेशन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? हर एक सेल, हर एक लिविंग बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी किसके फॉर्म में होता है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी होता है ATP, ओके। अब ये ATP जब ब्रेक डाउन करता है तो ये बन जाता है ADP। ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है, ओके। ATP टर्न्स टू बी ADP, ओके, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ओके। फिर जब भी ये एनर्जी टूटती है, ATP से ADP बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है और हमारे सेल को फंक्शन करने के लिए हेल्प मिलता है। अब आते हैं लाइसोसोम्स पे। लाइसोसोम्स कीप्स क्लीन सेल। अब लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ओके। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है इन्हें? वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग? जैसे ही सेल के अंदर कोई भी चीज़ मर जाता है, कोई चीज़ अनयूज चीज़ पड़ी है, तो ये क्या करता है? अपने आप को बर्स्ट कर देता है और बर्स्ट करके उस चीज़ के अंदर से एक लिक्विड निकलती है जो उसको गला के सेल के बाहर भेज देता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो सेल के अंदर पूरा का पूरा कचरा एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, ओके, और सेल पूरा पूरा खराब, देखो जिस तरह से खराब हो जाएगा। बट लाइसोसोम्स क्या करते हैं? खुद को बर्स्ट करके उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है उससे अनवांटेड चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए उसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। वाई? ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। देन ग्रैनुअल स्टोर रिजर्व फूड। ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? ग्रैनुअल्स जो रिजर्व फूड मतलब फूड है उसको सेल के अंदर स्टोर करते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, लाइक स्टार्च ग्रैनुअल्स, लिपिड ग्रैनुअल्स, अलग अलग ग्रैनुअल्स आते हैं। बट मेजरली ग्रैनुअल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज यूनिट ऑफ सेल। वैक्यूल्स को क्या कहते हैं? स्टोरेज यूनिट ऑफ सेल। ये सेल के अंदर खाना और पानी स्टोर करता है। हमने पढ़ा था प्लांट से एनिमल सेल में, प्लांट सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बट एनिमल सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरह से मटेरियल, शुगर, वाटर, सब चीज़ को कौन स्टोर करता है? वैक्यूल स्टोर करते हैं, ओके। वैक्यूल्स आर नोन एज स्टोरेज बैग। देन आता है प्लास्टिड्स। हम ऑलरेडी प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में।
तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट। प्लांट में जो कलर्ड पिगमेंट होता है, कलर्स होते हैं, इसके वजह से होते हैं। ओके, ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ये, प्लांट में, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्लास्टिड समझ में आ गया। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिड्स है। क्रोमोप्लास्ट, देखो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलर्ड प्लास्टिड। फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? दो तरह, देखो क्रोमो, ल्यूको। प्लास्टिड्स कनेक्ट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल हो उसको क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोफिल ना हो तो क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ लो, तीन तरह के कौन कौन से होंगे? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, प्लांट का जो कलरलेस पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट। कलर्ड पार्ट में क्या होता है? ठीक है, ओके, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो पहले इसको फिर से एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट। तो प्लांट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ओके, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम में प्रेजेंट होता है प्लांट के। ओके, ओके, सो देख पाएंगे आप यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में गिवन है। ठीक है, प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड मटेरियल एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुल। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? एक तो पहली बात कलरलेस पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइक स्टेम, रूट में कलरलेस होता है, और दूसरा ये स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैनुल्स को स्टोर करता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइन, उसी तरह से क्रोमोप्लास्ट होता है, यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है बट मैंने आपको वहाँ डायग्राम में दिखाया था। वो कलर्ड पार्ट, प्लांट का जो कलर्ड पार्ट होता है उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे है, इसका यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप कलर्ड पार्ट जो होता है, जो प्लांट के जितने भी कलर्ड पार्ट हैं उसको हम क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं हमारे पास। क्रोमो मतलब कलर्ड, क्लोरो मतलब ग्रीन कलर जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल, एंड ल्यूको मतलब कलरलेस। ओके, और ग्लूकोप्लास्ट का भी फंक्शन यहाँ पे गिवन है, स्टोर्स मटेरियल एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। तो आपको इसी तरह से आपको ये सारे डेफिनेशन, सारे ऑर्गेनल के डेफिनेशंस यहाँ पे प्रेजेंट है। आप ये डेफिनेशंस देख सकते हैं। हमने देखा सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, RER, SER, दोनों यहाँ पे मेंशन्ड है, उनके फंक्शन मेंशन्ड है। देन गोल्गी apparatus, उनके फंक्शन मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से क्या काम होता है गोल्गी apparatus का, पूरा यहाँ पे किसने डिस्कवर किया, वो भी किसके पीछे नाम पड़ा वो भी बताया गया है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, माइटोकॉन्ड्रिया उसका फंक्शन क्या होता है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, और एनिमल एंड प्लांट सेल की डिफरेंस तो हम देख चुके हैं। तो ये सारे ऑर्गेनल्स हमने आज देखे। ओके, तो इनके आपके नोट्स आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ओके, साइटोप्लाज्म एंड ऑल हम पहले देख चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में भी हम देख चुके हैं। ओके, सेल वॉल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, प्लाज्मोलाइसिस देखा कि जब प्लांट से वाटर का लॉस होता है तो जब भी प्लांट क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ओके, तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। जब वाटर का लॉस होता है और प्लांट श्रिंक करता है तो हम उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। फिर हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखा, आइसोटोनिक सोल्यूशन देखा एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन देखा। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा जो ये कंटेंट था। ओके, Now, I hope you understood and enjoyed watching the function of cell organelles. And in below those presentation, there was in a simple language, in one line, the function of the organelles was given. But then too, okay, in even the presentation, the notes presentation, you saw the function of different organelles. Okay, so let's take a reminder. Let's take a recap of all the organelles. The main organelles were endoplasmic reticulum, where they are having two parts, SER and RER, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. After that, we were having what? Golgi bodies, lysosomes, ribosomes. Okay. After that, we had mitochondria. Okay. Then we had plastids. Plastids were having three types of plastids: chromoplast, chloroplast, and leucoplast. Plastids are responsible for color. Chromoplast is responsible for multiple colors other than green. Chloroplast contains chlorophyll, that's why it gives green color, and leucoplast is colorless, which is helpful in storing the food. Okay, I hope you understood the complete presentation and complete lecture depending upon that how the organelles they completely work, and I want you people to prepare the notes according to that. Okay, whatever topic we studied, starting from the diffusion, osmosis, even the difference between osmosis and diffusion, different types of solution, hypotonic, isotonic, hypertonic, you need to prepare notes on that also, making a table.
Okay, that what is hypertonic, where will be the movement in hypertonic, where inside the cell or outside the cell. These are the things which you need to prepare, and after that the function of each and every cell organelles, I want you to prepare that in a proper manner. Okay, so this is how the chapter is ending today, and it was a very interesting chapter to understand. I hope you understood everything. We'll meet in the next lecture. Till then, thank you and have a nice day.